Good morning and welcome back again, my dear students. This is class 7. Today I am glad to be once more among you to teach you the previous chapter, what we have learned about the Tom and about his brother George. Okay. So yesterday we were seeing about the situations which his brother Tom was going through and what George did for him we saw yesterday. आज फिर से हम आप सबों को स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। आज हम खुश हैं कि हम फिर से आप लोगों को वो पिछला चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा था टॉम और उसके भाई जॉर्ज के बारे में और उनके परिस्थिति के बारे में हमने लोगों ने सुना कि किस तरह से उसका छोटा भाई उसके लिए समस्या का कारण था, किस दौर से होकर के उसका छोटा भाई गुज़रा और किस तरह की बदनामी उसके बड़े भाई जॉर्ज को झेलना पड़ा और उसके बाद उसने अपने भाई को उस दलदल से बचाने के लिए क्या क्या किया। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल सुना और समझा और आज हम उससे आगे हम आपके लिए पढ़ेंगे और हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। So I believe that till that story you people have understood it very properly. So today I'm going to continue the next part of this story today. So continue in touch and seek the chapters, listen properly, try to understand it, and don't forget to go and subscribe the YouTube channel where I used to give you all the details of your chapters, your lessons, everything. But for only teaching purpose I used to use the YouTube. For the exercises I use WhatsApp group to text you about the exercise, their question answer and everything. Okay. So आप हमेशा हमारे संपर्क में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें पढ़ाई करना है, हमें पढ़ाई पर जोर देना है, उसको अच्छे से समझना है। और ये बात मत भूलिएगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। आप जाइए YouTube चैनल पर, मेरा नाम सर्च कीजिए ग्लैडसन जॉर्ज, आपको मिलेगा। आप वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको सारे पढ़ाई से संबंधित मिलेंगे, लेकिन आपका एक्सरसाइजेस जो होगा, क्वेश्चन आंसर वगैरह, वे सब चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ओके, सो थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट अबाउट द चैप्टर। I have never seen George in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo. The moment they cashed the check, they spent a happy month there. Now, another scene is going on here. What is that? He had never seen George in such a rage. And as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to the Monte Carlo shop for a moment and they cashed their check. What does it mean? Now here his brother Tom again cheated his elder brother George. What is that? He played a trick over there. In front of his brother, he showed that I am angry with the second person, Cronshaw. And after that moment, when he received a check of $500 from his elder brother, after a moment, they both together went to a place, it's named Monte Carlo, and they cashed back, because by having check we cannot do anything, or we can't buy anything or purchase anything from anywhere else. To do all those things, he played a game with his brother, and now he went to the cash counter and he cashed his check out from there, and he spent a month very happily. What is that? यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसका भाई जो है, ये टॉम जो है, अपने भाई को फिर से एक बार और धोखा देता है। कैसे देता है? कभी भी अपने छोटे भाई को इतना क्रोधित होते हुए जॉर्ज ने नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले सीन में हमने देखा कि इसने क्रॉनशॉ के साथ एक बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से उसको लोग
कोर्ट में, कचहरी में पेशी करने के लिए ले जाने के लिए कह रहे थे। यानी कि बड़ा भाई का ये सोच था कि अगर इसको कोर्ट में ले जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति में दोष पाया जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार का कार्य करता है। अब बताइए, ये ऐसा करने वाला व्यक्ति को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई उस अगले व्यक्ति को यानी क्रॉन्शो को वो $500 का चेक देता है, कहता है भाई ये बात को यहीं पर रफा दफा करो, इसको कोर्ट कचहरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मेरा भाई जो है जेल में बंद हो जाएगा, वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये क्या करता है, अपने भाई को छुड़ाता है उस बंदे से और उसको ₹500 देता है। कुछ देर के बाद क्या देखता है कि वो दोनों, कौन कौन, टॉम और क्रॉन्शो, कुछ देर के बाद वहाँ से मोंटी कार्लो करके एक जगह है, एक दुकान है, वहाँ जा कर के उसके बड़े भाई ने जो उसको ₹500 का जो चेक दिया था उसको भजा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई चेक के अगर हाथ में है तो चेक किस काम का है भाई? जब नगद हाथ में नहीं होगा तो चेक किस काम का है? क्योंकि चेक ले करके कहाँ कहाँ आप उसको खरीदिएगा। आप मान लीजिए कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं, चेक दे दिए, चलो भाई मेरा 500 का चेक है, तुम रख लो, हमको कपड़े दे दो। अब कपड़े दे दिया, भूख लगा है तो क्या करेंगे, वापस उसे चेक लेके आएंगे? नहीं होगा। हमारे लिए तो उसके लिए हमारे पास कैश होना ज़रूरी है। तो ये क्या करता है कि उसके पास से कैश ले आता है और कुछ महीने या 1 महीने के लिए क्या करता है, वो अपना ज़िंदगी बड़ी ऐश व आराम से गुजारता है। अपने देश में अगर $500 की बात कहा जाए तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया होता है। 15 से 20 हज़ार रुपये एक व्यक्ति के लिए काफ़ी होता है 1 महीना गुजारना, है ना। सो व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट? फॉर 20 years टॉम रेस्ड एंड गैम्बल्ड, Finlanded with the prettiest girl, danced, ate in the most expensive restaurant and dressed beautifully. Now again the another scene is going on. लगभग 20 साल तक इसका भाई जो है टॉम, ये जुआ खेलता था। मतलब उस झुंड में, उस बुरी दुनिया में अपने आप को इतनी बुरी तरीके से फंसा लिया और अय्याशी करने लगा। अय्याशी मतलब होता है ना कि मतलब खूबसूरत लड़की अगर दिख जाए तो उसको छेड़ना, उसके पीछे पीछे जाना और अधिक से अधिक समय ऐसे लोगों के साथ समय बिताना और लड़कियों के साथ नाचना और अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाकर के खाना खाना और सुंदर सुंदर कपड़ा पहनना। और इस तरह का काम जो है, मतलब वो उस जो पैसा उसने चेक से भजाया था, जो नगद किया था, उन सारी चीज़ों से ऐसे ऐसे कामों में वो इस्तेमाल किया। देन व्हाट हैपेंस? दो ही वॉज 46, ही लुक्ड 35। उसका उम्र 46 का हो गया था, लेकिन उसकी पहनावा, उसका रहन सहन, उसका हाव भाव से स्पष्ट होता था कि ये अभी भी ये 35 का ही है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, जवान ही दिखता है। He was the most amusing companion, and though you knew he was a worthless fellow, you could not but enjoy his company. He was very popular. What happened the next moment? और ये इतना ढीठ और मतलब एक ऐसा सोच का व्यक्ति हो गया था, क्योंकि इसका जो साथी था या इसका भी जो संगत था वो इतने बुरे लोगों के साथ इसका संगत हो गया था कि क्योंकि वो इसके वजह से वो पूरी तरह से एक बेकार हो गया था, क्योंकि उसके ये ऐसे लोगों का अनुयायी बन गया था, ऐसे लोगों के झुंड में हो गया था कि वो पूरी तरह से कहा जाए तो वो बर्बाद हो चुका था। और बर्बादी होने के कारण उस बर्बादी में भी वो अपने आप को मशहूर कर लिया था। कैसे मशहूर कर लिया? क्योंकि गैम्बलर लोग के साथ रहेंगे तो ज़रूरी निश्चित है कि हम उसके जैसा बन जाएंगे, उसके जैसा हमारा सोच हो जाएगा, उसके जैसा पैसा कमाने की बात आएगी, उसके जैसा रहन सहन करने का बात आएगा, उसके जैसा हमको ऐसा अय्याशी करने का इच्छा होगा। तो ज़रूर से है कि अगर हम उस हालात में पहुंच जाएंगे, वैसी स्थिति में जब हम आ जाएंगे, तो ज़रूर है कि लोग हमें एक अच्छे नाम से, एक क्या बोलते हैं, अवधि हमको प्राप्त हो जाएगी और एक हम अच्छे पोस्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि लोगों के नज़र में आ जाएंगे हम। देन व्हाट हैपेंड? पुअर जॉर्ज वॉज only a year older than Tom, but he looked 60. अब देखिए, दोनों भाई के उम्र के अंतर है। उम्र में क्या अंतर है कि छोटा भाई जो है 46 का हो गया था, लेकिन देखने में 35 का लगता था, और बड़ा भाई जो है उससे
एक ही साल का अंतर था, मतलब उससे 1 साल बड़ा था। यदि ये वो 46 है तो ये 47 का था, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता था कि लगभग ये 60 साल का बूढ़ा हो चुका है। ही वॉज ड्यूटीफुल, punctual and regular. He was honest and hardworking. He had good wife to whom he had never been unfaithful. He had 4 daughters to whom he was the best of fathers. His life was blameless. He had been saving a third of his income for his old age, and his plan was to retire at 55. What is here? Here we are seeing that the differentiate between the Tom and the George. Tom was very naughty, very what we can say. He is a cheating person. He used to cheat his brother. But in that same way, if we are seeing about the George, he was quite different from his brother. What he was? He was a dutiful person. It means he was a responsible person, and he was punctual, and he was regular to his work, and he was too honest, and he was hard working man. And by having all those good habits in him, he was a good husband for his wife and a good father for their children. And what he do? He used to save from his income, because he know that if I won't make any saving for my coming futures or for my children's, then they will be coming on the road for as like a beggars. So he doesn't want to make their children to beg in front of anyone for anything, for any reason. So what he did, he planned to retire at the age of 55. When he will be retired at the age of 55, then he can do something more for their children and for their family. And this man was also a blameless. हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका भाई जो टॉम है और ये जो जॉर्ज है उसका बड़ा भाई है, इन दोनों में काफ़ी मतलब अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है। क्या है इसमें कि छोटा भाई जो है इतना शरारती, इतना बदमाश, इतना बदनाम करने वाला बेईमान लड़का हो गया, और उसी जगह पर इसका बड़ा भाई जो है एक अच्छे रास्ते पर चल के अपना जीवन को दूसरों के लिए एक नमूना का कारण बनाया है। कैसे? क्योंकि देखते हैं कि दोनों के उम्र में 1 ही साल का डिफरेंस है। वो 46 का है तो ये 47 का है, अगर वो 45 का है तो ये 46 का है। 1 ही साल का अंतर है इसमें। लेकिन इन सारे बातों को होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को जिम्मेवार व्यक्ति बनाया, वो अपने आप को पंक्चुअल किया, मतलब समय पर अपने सारे काम को पूरा करने का एक निर्णय लिया, और वो साथ ही साथ वो हर चीज़ों में रेगुलर हुआ करता था, और साथ ही साथ वो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो कभी भी वो किसी और के साथ मतलब बुरा व्यवहार किया नहीं। इतना होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छा और विश्वास योग्य पति रहा अपनी पत्नी के लिए, और एक विश्वास योग्य पिता बना अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए अगर नहीं सोचता हूँ, तो हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में मेरे बच्चे मेरे छोटे भाई के समान क्या हो सकता है, भिखारी बन सकते हैं, सड़क पर आ सकते हैं, वो लोगों के सामने भीख मांगेंगे। तो ऐसी अवस्था उनके जीवन में नहीं आए, इसलिए ये क्या करता था, हर बात में परफेक्ट होता था, हर बात को बहुत सावधानी से, बहुत ही गंभीरता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ करता था। और ये व्यक्ति निर्दोषहीन था, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति दोष नहीं लगा सकता था। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, हमने आगे पढ़ा है इसके बारे में कि ये जो है एक वकील है, बड़ा भाई जो है वकील है। वकील होने के नाते हम जानते हैं हमारे बिहार में या हमारे भारत देश में या पूरे दुनिया की बात देखा जाए, कहीं कहीं होता है कि किसी बात को झूठ को सच बनाने के लिए या सच को झूठ बनाने के लिए लोग पैसा लेते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति क्या है, सच्चाई के लिए लड़ा है और अपने जीवन को दूसरों के सामने एक नमूना का कारण बनाया है। और ये चाह रहा था कि हम अपने समय से पहले, मतलब 60 साल की उम्र में ये रिटायर होने का सोचा था, लेकिन उससे 5 साल पहले ये रिटायर होना चाहता है, ताकि अपने बचे हुए 5 साल के समय में कुछ और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए कर सके। ये है हमारा
यहाँ का अब तक का कहानी, इसके आगे क्या होता है. When I asked him what made him so gloomy, he shook his head and said, I was all weary when Tom was young. In 4 years, he will be 50. He will not find life so easy then. For 25 years, I have said that Tom would end in the gutter and that in the end he will see if it really pays best to work or be idle. Now, another scene is being going here. What is that? He asked to his brother, how he is looking so gloomy. मतलब इतना खूबसूरत, इतना सौंदर्य, इतना सुंदर कैसे नज़र आता है. वो अपना सिर को हिलाया और कहा, ये सब बस हो गया क्योंकि मैं जवान हूँ यार, मैं जवान दिखता भी हूँ. और वो जानता है, उससे कह रहा है उसका बड़ा भाई कि अगले 4 साल के बाद तुम तो 50 के होने जा रहे हो, और ये 50 का जब उम्र हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर ये तुम्हारा जो जीवन है वो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है. और पिछले 25 साल से तुमको हम कई बार कहें कि तुम्हारा ज़िंदगी जो है नरक हो गया है, तुम्हारा लाइफ गटर हो गया है, लेकिन तुम अपने जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो. और ये बात भी हम बता देना चाहते हैं कि तुम्हारा ज़िंदगी जो है ना सबसे बेकार हो गया है, सब एकदम बर्बाद हो गया है. इट इज़ गुड फॉर नथिंग. और ये अंत में मैं तुम्हें ये बात को बता देता हूँ, तुम इस बात को देखोगे कि तुम इसके लिए अच्छा चीज़ नहीं कर पाओगे. तुम कितना भी चाहोगे कि हम अब अच्छा कर लें, ये संभव नहीं होगा. और तुम किसी के लिए नमूना भी नहीं बन सकते हो. यू कैंट बी आइडल फॉर एनीथिंग. पुअर जॉर्ज, आई सिंपथाइज्ड विद हिम. और उसका बड़ा भाई जो है बेचारा कहेंगे उसको, क्योंकि वो उसके लिए सिंपैथी रखता है, मतलब उसके लिए सहानुभूति दिखा रहा है कि यार मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम्हारी इस अवस्था को देख करके मेरा दिल टूट रहा है, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो और मेरे छोटे भाई का ज़िंदगी इस तरह से नरक हो गया, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रही है. तब क्या होता है? डू यू नो वॉट हैज़ हैपन नाउ? आस्क्ड जॉर्ज लुकिंग एट हिम. उसके भाई ने, बड़े भाई ने उसको देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम अब जानते हो कि क्या हुआ है? आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गॉट इन टू द हैंड्स ऑफ पुलिस. जॉर्ज वॉज हार्डली एबल टू स्पीक. और मतलब बहुत बुरी तरह से, मतलब उसको दुख लगा, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गंदा सोचा था, बहुत बुरा सोचा था. क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यदि तुम कॉप्स के हाथ में, यानी पुलिस के हाथ से पकड़े गए होते तो क्या होता. यू नो, he said at last, all my life I have been honest and hardworking, and now I can hope to retire on a small income. I have always done my duty in the state of life in which God has placed me. A very beautiful thought has been given by the elder brother to his younger one. What is that? He is saying that, at last I want to say you, in all my life I have been honest and hardworking for every people, and I'm hoping to retire with a small income, and I have done all my better work, all my goodness things for the people where the God has placed me, for the sake of the state, for the sake of God, for the sake of people. I have done everything good for that, so I think God will bless me for these things. He's giving a good lesson to him. Taking a good part to make his brother to understand about his life. यहाँ देख रहे हैं कि इसका बड़ा भाई जो है बहुत मतलब गंभीरता के साथ एक अच्छी सोच, एक अच्छी सलाह उसको देता है और कहता है कि मैं अब अपने बचे हुए समय को अच्छे से स्पेंड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अपने पूरे लाइफ में, जब तक मेरा जीवन एक नौकरी के स्थान पर था, तब तक मैंने बहुत ईमानदारी के साथ, कड़ी मेहनत के साथ मैंने काम किया, लेकिन अब मैं एक छोटे से रकम के साथ रिटायर होने वाला हूँ और मैंने अपने इस सेवा काल में अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, जिस जगह पर ईश्वर ने मुझे स्थित किया था, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है. उसका छोटा भाई कहता है, ट्रू, सही है. और उसके बाद क्या है? एंड
You can't deny that Tom has been an idle, worthless, and dishonorable rogue. If there were any justice, he would be in workhouse. True, जॉर्ज ग्रीव रेड इन द फेस. अब उसका भाई जो है उसके साथ एक मतलब इतना दुख के साथ कह रहा है कि इस बात का तुम इनकार नहीं कर सकते हो कि टॉम जो उसका छोटा भाई जो है वो दूसरों के लिए आइडल नहीं रहा है, वो वर्थलेस रहा है, मतलब बेकार का ज़िंदगी जिया, वो डिसऑनरेबल था. डिसऑनरेबल का मतलब क्या है? डिसऑनरेबल का मतलब है कि वो दूसरों के लिए अनादर का कारण था, मतलब अपने परिवार के लिए भी एक अनादर का कारण है. अगर इसके प्रति अगर किसी भी प्रकार का न्याय का बात होगा तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मैं अब इस काम को लेकर के तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला, मैं अपने घर में आराम करूँगा. और ये बात को कहते हुए उसका भाई का जो चेहरा है जो क्रोध से लाल हो गया, यानी जॉर्ज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया. A few weeks ago, he married a woman old enough to be his mother, and now she's died and left him everything she had, 5 lakhs pounds and a yacht, a house in London and a house in the country. I burst into a shout of laughter as I looked at George's angry face. I rolled in my chair and very nearly fell on the floor. George never forgave me, but Tom often asks for me excellent dinner at his charming house in my Mayfair. Now, one more incident is happening here. यहाँ पर एक और घटना घट रही है. इसका जो छोटा भाई है एक स्त्री से विवाह करता है. उसकी उम्र अधेड़ उम्र की है, मतलब उससे देखने में अगर कहा जाए तो वो उसके माँ के उम्र की नज़र आती है, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है. और उसके पास जो भी धन संपत्ति था वो सब कुछ उसको दे देती है, यहाँ तक कि 5 लाख पाउंड करोड़ों रुपए उसको दे जाती है, और उसका घर जो लंदन में है वो भी उसको दे जाती है. और जहाँ भी उसका जो संपत्ति था वो सब कुछ उसके भाई के नाम पे मिल जाता है. तब ये बात सुनने के बाद ये जो है अपने भाई की बात को सुन करके, मतलब अपने भाई के क्रोधित चेहरे को देख करके, लाल हुआ चेहरा को देख करके हंसता है, उसको मजाक उड़ाता है. वो अपने चेयर पे रोल करता है और रोल करते हुए उसके सामने जाकर उसके पांव तले गिर जाता है और चाहता है कि वो अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग ले, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ जो करना अच्छा करना था वो सारे चीज़ों को खो दिया और अपना जीवन को बेकार कर दिया और अनादर का कारण बना. ये सारी वजह से वो चाह रहा था कि मैं अंत में अपने भाई से माफ़ी मांग लूँ, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे कभी माफ़ नहीं किया. और उसका छोटा भाई उससे मतलब एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन उसके घर से चाह रखा कि उसे मिल जाए, क्योंकि वो कभी अच्छा भोजन किया नहीं. लोगों के साथ ऐशो आराम में अय्याशी करने में अपना सब कुछ उड़ा दिया. जो जीवन का असली मज़ा है, असली खुशी है, वो आनंद जो उसको मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो चाह रहा था कि अंत के समय में अपने भाई से माफ़ी मांगकर इसको पूरा कर लूँ, लेकिन उसके साथ कभी नहीं हुआ. और इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? समटाइम्स टू टॉयल हार्ड गोज वेस्ट एंड समटाइम्स विदाउट लेबर वी गेट ए गोल्डन चांस. इट इज़ ऑल अबाउट लक. कहने का मतलब है कि जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं या फिर हम अच्छा कुछ करना नहीं चाहते हैं, जीवन में हमेशा हमें सुनहरा अवसर नहीं मिलता है. जब वो मिलता है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये बाय लक ही हमको मिलता है, ये हमें बाय लक प्राप्त होता है. ये है हमारा कहानी से सीख हमको मिलता है, जो हमको अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरी है. तो ये कहानी यहाँ समाप्त हो रहा है. अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे इसके एक्सरसाइजेस के साथ. तब तक के लिए रीड द चैप्टर, go through the word meaning, learn it, and if you have any problem you can consult to me and I am there to help you all. Okay, thank you. May God bless you. Have a nice day.